Hello everyone, my name is Mamta Sharma from Super 20 Institute. So today I will teach you physics here. So before teaching or before starting the physics, first of all we will see what we are doing here. That is कि आपका जो यूनिट 1 है of your physics उसको कंप्लीट करने से पहले हम इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर अप करेंगे. That is first one is your NCERT book. In your NCERT book हम उसमें क्या कवर करेंगे. That is the NCERT basic terms, question answers, in-text questions as well as back exercise and some important questions which are also given in your NCERT book. And for the competitive exam purpose, we should cover your NEET questions as well as for JEE questions. So now let's come to the point, that is your unit number 1 of your physics book. Your unit number 1 is electrostatics. Your first unit name is electrostatics, and your first unit further is divided into the two subunits. That means जो आपका unit 1 है, unit 1 name is electrostatics, and your first unit is divided into two subunits, unit number 1 and unit number 2 here, or we can say that is the chapter number 1 and chapter number 2. So your chapter number 1 name is electric charges and field. So before starting your chapter number 1, that is the electric charges and field, we will see what is the meaning of electrostatics. Electrostatic, it is a combination of the two terms here. First one is electro and another one is static here. So first of all, you will tell me what is the meaning of the static here. I think आप सभी को पता ही होगा. Electro means electric charges and static means rest. As you can see, your chapter number 1 name is electric charges and field. That means हम इस यूनिट में क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस को और उससे रिलेटेड उसकी फील्ड. When the charges they are placed in rest positions, और उसके साथ उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन से फोर्सेस वहां पे अप्लाई होते हैं, क्या वो अपने इफेक्ट्स को क्रिएट करता है, और उन सभी की रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे. दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन रेस्ट पोजीशंस. Now come to the point, that is your chapter number 1. Chapter number 1 is again that is the electric charges and field. So first of all we will see your first term, because your chapter number 1 it is also a combination of the two terms here, electric charges as well as the field here. Electric charges I think आपने अपनी previous classes में पढ़ा ही होगा, उसके about भी आपको पता ही है. चलो हम उसकी जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. फर्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस. So what is the meaning of the charge? कौन बताएगा मुझे what is the meaning of the charge? That is, it is the intrinsic property. It is the intrinsic property of the matter. क्या होता है, एक आपके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, दैट इज द मैटर. इंट्रिंसिक, that is intrinsic property of the matter. Intrinsic property means further no research. No research, or we can say that it is the fundamental
क्वांटिटी। जो चार्ज है वो आपका इस यूनिट में, और जो आपके पास चार्ज है वो आपके पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी मींस दिस इज योर बेसिक टर्म, और इसके फर्दर हम कोई भी इसकी रिसर्च नहीं कर सकते। बहुत ही ये बेसिक क्वांटिटी को हम इसको कंसिडर करेंगे, और इसी को कंसिडर करने के बाद ही हम इसके इफेक्ट्स को, इसकी फील्ड्स को, उसके अबाउट हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे कि ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, कैसे ये अपनी फील्ड को क्रिएट करता है, और कैसे कैसे ये अपने चार्जेस को क्या करवाता है, ट्रांसफर करवाता है और मूव करवाता है। नाउ वी कैन सी सम बेसिक टर्म्स ऑफ योर इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज? दैट इज सिंबल इज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ये हम क्या करेंगे, चार्ज के सिंबल लिए यूज करेंगे, और ये इसका चार्ज ही होता है। सो व्हाट इज द यूनिट? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द सिंबल ऑफ कैपिटल सी। और ये आपके पास क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। एंड चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? दैट इज इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, फर्दर इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो। आई थिंक आपको ये पता भी होगा और आपने ये सुना भी होगा। सिमिलर चार्जेस दे विल रिपेल टू ईच अदर, एंड unlike charges, or we can say that is the opposite charges, they will attract. ये टर्म्स तो आपको पता ही है। दैट इज लाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दे विल ऑलवेज रिपेल। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड जो आपके पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, और इसका सिंबल क्यू होता है, और इसका यूनिट आपके पास क्या है, दैट इज द सी हियर। एंड फर्दर one more property is there, charge is the scalar quantity. चार्ज क्या है, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्केलर क्वांटिटी हियर? दिस थिंग्स यू आर ऑलरेडी डन इन योर 11th क्लास। सो स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस, दैट मीन्स इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड हियर? मैग्नीट्यूड मीन्स अमाउंट और मैटर, कि कितना अमाउंट है, कितना मास है उसका, उस चीज को हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, और इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये हुई इसकी जनरल इंट्रोडक्शंस कि चार्जेस क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव हियर, एंड सिमिलर चार्जेस दे ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एंड सेकंड थिंग, इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम्स होते हैं, एंड इट इज अ scalar quantity. Now we can see the next term, that is charge is always come along with the mass. What I am saying, charge is always come along with the mass. Comes along with mass. So what is the difference between the charges and mass here? So यहीं से आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, what is the difference between the charge and mass? I think you know the answer of this question. Charge, okay, let's see, and mass. इसका डिफरेंस आपने क्रिएट करना है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, मास का सिंबल क्या होता है, स्मॉल है। चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। चार्ज वी आल्सो नो दैट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो फर्स्ट डिफरेंस आपके पास क्या हुआ, सिंबल. सेकेंड इज दैट इज द पोलैरिटी. ये पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, और आपके पास जो मास है वो क्या करता है, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स में एग्जिस्ट करता है. तो सेकेंड थिंग्स, जो चार्ज होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट जो आपके पास चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पर mass can depend on a speed. That means जो आपके पास मास है वो क्या करेगा, उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड हियर. सो मास का क्या फॉर्मूला होता है, आई थिंक आपको पता होना चाहिए. द फॉर्मूला ऑफ द मास हियर, m is equal to m naught divided by 1 minus v square divided by c square. तो ये फॉर्मूला लोअर क्लासेस में भी रीड करते हो, दैट इज इन द 9th 10th as well as in the 11th also. So we will see what is the meaning of this formula here. Where m is equal to m naught divided by 1 minus v square divided by c square. M is the mass of the object and m naught is the rest mass, where c is the velocity of light, or we can say that is speed of light, and v is the speed of the object. Here, तो आपके पास क्या होता है मास का फॉर्मूला, m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square. As it is clear from this formula कि ये जो आपके पास मास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डायरेक्टली वो क्या करता है, डिपेंड करता है. सो फर्दर हम क्या करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे. हमने तो उसकी जनरल इंट्रोडक्शन देख ली चार्ज की, कि चार्ज एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, एंड ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. बट जो आपके पास मास है वो क्या है, दैट इज mass is depend on a speed here. Or I will tell you one example here. When you are in motions or you are in a rest position, जब आप मोशन में होते हो और जब आप रेस्ट पोजीशन पे होते हो, दोनों कंडीशंस के ऊपर आपकी बॉडी का जो मास है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. दैट मीन्स कभी आप ऑब्जर्व करके देखना, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तब उस बॉडी का आपके पास कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है, और व्हेन वही ऑब्जेक्ट आप उसको रेस्ट पोजीशंस में रख देते हो तब उसका कितना मास होगा, एग्जिस्ट कर रहा होता है. तब वो दोनों मास की कंडीशंस आपके पास क्या रहेंगी, दैट इज द डिफरेंट. सो नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. इसमें इसकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हियर. कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा इन योर 11th क्लास. कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, कंजर्व करना. तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज है. जैसे मैं ये वर्ड बोलती हूँ कंजर्वेशन, आप सभी के माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन. आई थिंक आपने ये डेफिनेशन सुनी ही होगी. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सो कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, there is conservation of charge, that is charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one object to another.
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, वी आर टेकिंग वन एग्जांपल हियर। नाउ यू कैन सी हियर इन द अनदर टर्म वी कैन आल्सो से दैट द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। आई थिंक आपने ये भी सुना होगा, द टोटल चार्ज in an isolated system will remain constant. सुना है ना? That is, the total charge will remain constant, or we can say the total charge in an isolated system will remain constant. Now come to the point. Total charge of an isolated system will remain constant. So what is the meaning of the isolated system here? Isolated system means insulator. इंसुलेटर का मीनिंग तो आप सभी को पता ही होगा कि जो भी आपके पास किसी भी सिस्टम की इनसाइड की कंडीशंस हैं वो बाहर आपकी सराउंडिंग के साथ क्या होती है, शेयर नहीं होती हैं, उसके साथ ट्रांसफर नहीं होती हैं, एक्सचेंज नहीं होती हैं। सो let us see one example. मैंने एक सिस्टम को कंसिडर किया, suppose that it is isolated सिस्टम मीन्स इसके इनसाइड का जो भी आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, व्हाटएवर इट इज, चार्ज है, वो क्या है आपकी सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसकी जो सारी होल्स हैं वो क्या है, इंसुलेटेड हैं, इसलिए हम इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। एंड आई एम सपोजिंग हियर इज चार्ज +3 +2 एंड -4। क्लियर? फिर मैंने क्या किया, इस सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो है +3 +2 एंड -4। जब मैंने इस सिस्टम को शफल किया, मूव किया, मोशन में क्रिएट किया, तो जितने भी ये चार्जेस हैं ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं, शफल हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, दे आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन। सम चार्जेस दे विल मूव टू हियर एंड सम इज हियर एंड सम इज हियर, मीन्स वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे इनसाइड ऑफ द सिस्टम हियर। नाउ आफ्टर द मोशन द चार्ज विल +3 -2 and what is the third charge? That means you need to find out the third charge here. आपको एक सिस्टम दिया गया, उसके इनसाइड टोटल चार्ज है वो आपको बताया गया, तो उसको मोशन में क्रिएट किया जाता है। मोशन मीन्स हम उसको शफल करते हैं तो चार्जेस जो है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, बट एक चार्ज वहाँ पे क्या है, अननोन है, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस चार्ज, सो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज। अब हम इस चार्ज की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या रीड आउट करा, दैट इज द टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल चार्ज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन सी इन द सिस्टम नंबर 1 टोटल चार्जेस, क्योंकि चार्ज जो है वो आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप +3 +2 -4 is equal to another system। तो सिस्टम नंबर 1 कंसिडर करो, ये है आपके पास सिस्टम नंबर 2। तो आपने क्या करना है, सिस्टम नंबर 1 पे जितना टोटल चार्ज है सिस्टम नंबर 2 के टोटल चार्ज को क्या करना है, इक्वल करना है। तो सिस्टम नंबर 2 के ऊपर कितना टोटल चार्ज जो है एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज Q1 + Q2 + Q3 है, मींस ये आपके पास क्या रहेगा, इसमें फॉर्मूला रहेगा और रूल रहेगा। आपने क्या करना है, टोटल चार्जेस को क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, ऐड करना है, +3 -2 एंड वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड चार्ज। तो हमने इसको क्या सपोज किया, x हियर।
So now calculate this. Calculate कीजिए. Tell me the answer within 1 minute. Okay. Now see, 3 plus 2 is 5 minus 4, that is 1. Is equal to 3 minus 2 is 1 plus x here. Clear? So now you can easily find out what is the value of the x here. X की value आपने find out करनी है. 1 is cancelled out from both the side. X is equal to 0. That means here charge is 0. Because ये आपके पास क्या कर रहा है, टोटल चार्ज यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है 1, यहाँ पे भी आपके पास 1 बन रहा है. तो टोटल चार्ज आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. क्योंकि ये 1 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 1 minus 1 is 0 here. That means the value of x is 0 कूलम. यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 0 आ गया. सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या होती, डिफरेंट होती. तो मैं चेंज ही कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने कंसिडर किया -2. देन चेंज करिए सभी को. -2 4 की जगह क्या लिखोगे, -2. अगेन 4 की जगह -2. एंड योर टोटल चार्ज in the system number 1 is +3. Now tell me what is the answer of the x here. Here, here is 1. 1 is moving to the other side. It become negative here. That is 3 minus 1 is equal to x here. And what is the value of the x? That is x is equal to 2 plus 2 coulomb. Clear? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अननोन चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो जब भी आपके पास क्या है, वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, आपके पास दो सिस्टम को दिया गया है, एक आपके पास रेस्ट पोजीशन पे है. जब आप उसी सिस्टम को क्या करते हो, मोशन में क्रिएट करते हो, तो आपके पास उसमें चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो वही आपने क्या करना है, अननोन चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो अननोन चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Conservation of charge means the total charge will remain constant. Total charge हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, sum of all the charges. Sum of all the charges, एक ही सिस्टम में आपके पास कितने चार्जेस हैं, आप उनको क्या करोगे, प्लस करोगे और उसको अनदर सिस्टम के चार्जेस के साथ क्या करोगे, इक्वेट करोगे. इक्वेट करने के बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स हियर. तो वहां से आपके पास ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है. क्लियर? Is it clear to all? Okay. Now you can see the next term, next property, that is quantization of charge here. What is the meaning of the quantization? Quantization of charge means, quantize means available in fixed amount. That means कि आपका जो चार्ज है वो कितना फिक्स अमाउंट में क्या है, वहां पे प्रेजेंट है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हियर. और the smallest charge that can exist independently, that is charge on one electron. कि one electron के साथ कितना चार्ज आपके पास वहां पे प्रेजेंट है, फिक्स्ड अमाउंट उसकी प्रेजेंट है, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे. तो ये तो इसका मीनिंग हुआ जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट किया हुआ है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज हियर. वो आपने इसकी अनदर डेफिनेशन भी देखी होगी, दैट इज charge can exist in integral multiple of the basic charge. That means जो आपके पास आता है, charge always exist in integral multiple of your fundamental quantity. Charge exists in integral multiple of the fundamental charge.
Okay. So fundamental charge means that is your basic charge. Basic charge का आपके पास सिंबल क्या होता है? E. E के ऊपर नेगेटिव या फिर E के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके पास फंडामेंटल चार्ज होता है। So what is the value of the one electron? Is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है which you need to remember here. So according to this definitions, that is, it always exists in a integral multiple of the fundamental quantity. Example, charge can exist like a +1, +2 electron, +3 electron, and up to so on, plus n electron. It also exists in the negative term, -1e, -2e, -3e, and up to so on, minus of ne. So when we generalize this result, जब हम इसको combine करते हैं, then what we will get? हमें क्या मिलता है? That is Q is equal to plus minus Ne. तो ये आपके पास क्या हुआ? क्वांटाइजेशन चार्ज का क्या है? That is your basic formula. Q is equal to plus minus Ne. जो आपने अपने लोअर क्लासेस में रीड आउट किया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज है, तो वहां पे उन्होंने शॉर्ट टर्म में लिखा होता है Q is equal to plus minus Ne, where n is the integer like a +1, +2, +3, 1, -2, 3 and up to so on. n की वैल्यू कोई भी हो वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट in decimal form. That means Q cannot exist in term like a 2.5 or 3/1. ये जो आपका चार्ज है वो डेसिमल टर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ किसका मल्टीपल होता है? इंटीजर का। दैट इज इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर बेसिक टर्म। तो वहां पे आपके पास क्या रहता है? n की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। Okay, now you have to tell me one thing कि कौन सी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और किस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? As we also know that charge is in positive as well as a negative term. ये जो चार्ज है वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज कब एग्जिस्ट करता है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दैट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ऑब्जेक्ट अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा? दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। एंड दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी डन इन योर केमिस्ट्री आल्सो कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द पॉजिटिव एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी द नेगेटिव चार्ज है। मींस उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास क्या है? कम है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज द रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं which is based on your quantization of the charge here. Can a charge of, my question is, can a charge of 8 into 10 raised to power minus 18 coulomb be given to a body? Try to understand this question. क्या हम चार्ज, कितना चार्ज गिवन है? 8 into 10 raised to power minus 18 coulomb किसी बॉडी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो आपको ये फाइंड आउट करना है इसका आंसर। सो विच इज बेस्ड ऑन योर क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज में अभी हमने क्या रीड करा? दैट इज Q इज इक्वल टू n into E here. So we don't know what is the value of the n. हमें क्या करना है? n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। Q is already given,
which you can see in your question. What is given? That is Q. 8 into 10 to the power minus 18, which is equal to n. We don't know. So what is the value of the E here? This is your fundamental term and this is your basic quantity, and its value is standard, which you need to remember here. That is a 1.6 multiplied with 1.6 into 10 to the power minus 19. Now you can easily find out the value of the n here. अब n की वैल्यू आप कैसे करोगे? आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में करते हो, इस टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, वो उसके डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगी एंड यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी. Minus of 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 90. आई थिंक ये आप खुद से कर सकते हो. जो पॉइंट है ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा. इट बिकम्स 80 हियर एंड माइनस ऑफ 80 की नेगेटिव टर्म जो है ऊपर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. आप इसको कट कर सकते हो 8 के टेबल से भी और डायरेक्ट 16 के टेबल से. सो 16 5 डायरेक्टली हियर एंड यू विल गेट द आंसर 5 into 10 to the power 1 coulomb और 50 coulomb. 50 जो है वो आपके पास क्या है? इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है. दैट इज आपके पास पॉजिटिव टर्म आ रही है 50 coulomb हियर. तो इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा? यस. हियर अगर आपके पास यही आंसर पॉइंट में आता या डेसिमल में आता तो आपका आंसर क्या हो जाना था? नो. बट ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है? दैट इज द 50 हियर. 50 इज द पॉजिटिव नंबर और इट इज द इंटीजर आल्सो. और आपके पास आंसर क्या आ रहा है? दैट इज द यस. वी कैन गिव दिस चार्ज टू अ बॉडी हियर. सिंपल. और इसी के साथ रिलेटेड आप इसके अनदर क्वेश्चंस देख सकते हो इन योर एनसीईआरटी बुक हियर. कुछ ना कुछ वहाँ पे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. चार्ज की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन योर क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज. तो नेक्स्ट आता है हाउ टू चार्ज अ बॉडी. सो योर नेक्स्ट टर्म इज, तो आपके पास नेक्स्ट बेसिक टर्म है हाउ टू चार्ज अ बॉडी. अब हमने चार्ज के अबाउट तो रीड किया, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को देखा और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा. अब हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं उसके अबाउट रीड करना है. दैट इज द नंबर ऑफ वेज आर हियर व्हिच वी आर यूजिंग टू चार्ज अ बॉडी. कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं इन अ डिफरेंट वे. सो वन इज हियर, फर्स्ट है आपके पास चार्जिंग बाय कंडक्शन. Second is charging by induction and third one is charging by friction. So main the three ways are here: charging by conduction, charging by induction and charging by friction here. So that's all for today. You can read your topic up to this. आपने क्या करना है? अपनी एनसीईआरटी बुक से यहाँ तक इसको रीड करना है. Now I will tell you all these things tomorrow. अब हम क्या करेंगे? कल इसके अबाउट रीड करेंगे हाउ टू चार्ज अ बॉडी हियर. कि कैसे हम उसको कंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं, कैसे हम इंडक्शन के थ्रू उसको चार्ज करते हैं और कैसे हम उसको फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं. दैट मीन्स आज आपने क्या रीड करना है? फर्स्ट आपने अपनी चैप्टर का नेम है, उसके जो इंट्रोडक्शन है वो आपने रीड करना है. इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या उसकी मेन टर्म्स रहती हैं, क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और क्वांटम